हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगी। मेरे वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी दिखेंगे जो फिंगर टिप्स से है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. Lifespan of organisms are not necessarily correlate with their size, such as the sizes of crow and the parrot are not very different, yet their lifespans show a wide differences. We can compare mango tree with peepal tree and see the difference of the lifespan. No individual is immortal except single cell organism. Why? Because single cell organism reproduce asexually during their unfavorable condition and at the time of death. Okay, lifespan of an organism usually include 4 stages. First is juvenility, second is maturity, third one is aging and the senescence, and the last one is death. Now we understand individually. Juvenility. During this stage, organism develops the capacity to reproduce, and the next one is maturity. Reproduction begins during this stage, and the next one is aging and senescence. Aging is the progressive deterioration in the body of organism, and the senescence is irreversible stage of aging, and the next one is death. What is it? Senescence finally lead to death. Here table is given below, and what is it? Lifespan of some living beings. चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या है इसमें. बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन क्या है? 1 to 2 weeks. एंड द क्रो का 15 years, पैरोट 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, फ्रूट फ्लाई 1 month, राइस प्लांट 4 months. एंड द नेक्स्ट इज टॉर्टोइज 100 to 150 years, elephant 60 to 75 years, dog 10 to 13 years, horse 50 years, banana tree 200 to 300 years, and sequoia plant ये जो है redwood tree 3000 to 4000 years. Okay, you have to memorize this lifespan of different organism. Next point is reproduction. Like begets like is called reproduction, and the other definition is reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to young ones, and young one is also called as offspring, and the offspring will be similar to their parents, and this process is called reproduction. Okay, and the type of reproduction is, there are 2 type of reproduction. First one is asexual reproduction and the other one is sexual reproduction. चलिए हम लोग पहले asexual reproduction को देखेंगे क्या होता है asexual reproduction. Okay, so in asexual reproduction single parent involve and produce offspring. Okay, and the offspring is morphologically and genetically similar to their parent, then the offspring is called clone. Asexual reproduction generally seen in unicellular organism. Okay, now we go to type of asexual reproduction. There are several type of asexual reproduction occur. Okay, then we start with fission. Fission is of 3 types. Okay, binary fission, multiple fission, and the next one is plasmotomy. नाउ इंडिविजुअली भी हम लोग समझते हैं क्या होता है बाइनरी फिजन. when one organism involve in reproduction and give rise to offspring, then the reproduction is called binary fission. It is of 3 type: simple binary fission, longitudinal binary fission, and the transverse binary fission. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल भी लर्न करते जाना चाहिए. Simple binary fission occur in amoeba, longitudinal binary fission occur in euglena, whereas the transverse binary fission occur in paramecium. Next one is multiple fission. What is it? जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. ओके, ये मैक्सिममली देखा जाता है अमीबा में एंड पैरामीसियम में. नेक्स्ट इज प्लाज्मोटोमी. ठीक है, ये किस में होता है? अपोलिना में होता है. ये डायग्राम इज गिवन हियर द बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा. ये तो डायग्राम हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अच्छे से जानेंगे इसे. नेक्स्ट वन इज बर्डिंग. व्हेन द डॉटर इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम द बर्ड, देन द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction is called budding. It is seen in Hydra and yeast.
ये जो डायग्राम है ये ईस्ट का दिया हुआ है एंड ईस्ट में बडिंग को दिखा रहा है एंड ये जो है आपका हाइड्रा का डायग्राम है, जो ये नीचे में जो है ये बर्ड है और बर्ड के थ्रू कैसे एसेक्स का रिप्रोडक्शन होता है वो शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गैमी। Gammy, it is a unicellular or multicellular propagule which develop in small receptacle called gamecope, ठीक है। गैमी के बारे में बता दूं कि मार्केंसिया का जो थैलस होता है उसमें कप शेप का एक ऑर्गेनिज्म टाइप का बना होता है, ठीक है। और उसी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है मार्केंसिया में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी ये गैमी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो अपने सीटोपोडिया से सिक्रीट करता है 3 लेयर एंड द 3 लेयर इज नॉन एज द एंसिस्टेशन, ठीक है। एंसिस्टेशन एंड एंसिस्टेशन व्हेन ये जो है जब ये फेवरेबल कंडीशन अपना देखता है ये स्पोर्स के फॉर्म में बन जाता है एंड द फेवरेबल तो कंडीशन में ये अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जनरेशन, रीजेनरेशन, ओके। द कैपेसिटी टू रीजेनरेट एन इंजर्ड पार्ट new individual from a fragment of tissue is called the regeneration. It is of two type, morpholepsis and the epimorpholepsis. morpholepsis में क्या होता है, जब स्मॉल फ्रैगमेंट से होल बॉडी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस एंड एग्जांपल इज हाइड्रा। वेर एज एपीमॉर्फोसिस इज जब एक छोटा सा पार्ट बॉडी का लॉस हो जाता है और उससे वही पार्ट क्या होता है वापस से जनरेट हो जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉल डिजर्ट एंड द फ्रैगमेंटेशन। In this, the parent body breaks into 2 or more fragments, and each fragment develops a new organism like Spirogyra sponges and echinoderms. ये जो है Spirogyra sponges, echinoderms, these are animals, okay. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। कुछ जो है एसेक्सुअल स्पेशल टाइप का भी रिप्रोडक्शन होता है लाइक फंजाई एंड एल्गी में देखने को मिलता है। देखिए ये क्या है, ये है आपका क्लामाइडोमोनास, ये पेनिसिलिन एंड ये है स्पॉन्जेस का गैम्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में एंड एल्गी में लाइक जो स्पोर्स, ठीक है, कोनिडिया, क्लामाइडोस्पोर्स, ओइडिया एंड स्पाइरोगैम्यूल्स, ये सब क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स है। जो स्पोर्स जो है मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है, एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास। द कोनिडिया इज नॉन मोटाइल एंड रिप्रोड्यूस एक्सोजीनियसली मतलब आउटसाइड द बॉडी। इसका एग्जाम्पल कौन है, पेनिसिलिन और पेनिसिलियम। क्लामाइडोस्पोर्स जो है थिक वॉल होता है, नॉन मोटाइल होता है, जस्ट इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ओइडिया स्मॉल थिन वॉल फ्रैगमेंट्स एगरिकस, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो a type of asexual reproduction. It is commonly in plants. The vegetative reproduction is called vegetative propagation also, like runner, oxalis, rhizome, zinger, sugar, banana, tuber, potato, offset जो है आइकॉर्निया में, बल्ब, गार्लिक में, ये सब एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। ये क्या है आपका, ये है पोटैटो में आई दिख रहा है, ठीक है। ये जिंगर है जिसमें आपका होता है राइजोम्स, ये है आइकॉर्निया, वाटर हाइसिन, ये है ब्रायोफिलम। उसके बाद देखिए इसमें इसके आगे क्या बोला जा रहा है, वाटर हाइसिन इज ऑल्सो के टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये एक वीट है, वीट जो वाटर एनिमल्स को बहुत हार्म करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर द टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय ह्यूमन बींग्स टू प्रोपगेट डिजायर्ड वेराइटीज़, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग वेराइटीज़ को इम्प्लांट करना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या किया जाता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज माइक्रो प्रोपगेशन। व्हाट इज इट, माइक्रो प्रोपगेशन इज द रैपिड टेक्निक टू राइजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टिश्यू कॉल्ड एज एक्सप्लांट, okay, grow in culture and medium under the aseptic condition which is used to produce disease free and the virus free plant, ठीक है, डेवलप हेल्दी स्टॉक्स।
दिस इज़ कॉल्ड द माइक्रो प्रोपगेशन। एंड माइक्रो प्रोपगेशन जो है अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर आ चुका है। ये एरा जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड MCQs करवाऊंगी और उसके बाद आगे का टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है आपको मैं समझाने में कामयाब हुई होंगी और बने रहिए मेरे वीडियो में। और अगर आपको कहीं कुछ सजेशन करना है तो आप भी फ्रीली होकर के कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।